All right, guys, let's start carboxylic acid and esters. Question number 1. The stomach wall can become sensitive to acidic compounds. Which is the most acidic compound? Most acidic. Most acidic वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप होंगे. तो हम यहाँ लिख देते हैं contain my goodness most CWH groups. देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ एक. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी बिकॉज इट कंटेन मोस्ट कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप. Question number 2. Lactic acid occurs naturally. For example, sour milk. Its displayed formula is shown. ये आपका secondary alcohol है और ये आपका carboxylic acid है. Which reaction occurs with lactic acid? Let's start with option. It decolorizes aqueous bromine rapidly. That's absolutely incorrect. क्योंकि इस कंपाउंड में between the carbon atom double bond exist नहीं कर रहा. It is insoluble in water. It is also absolutely incorrect because all carboxylic acid and all alcohols exhibits hydrogen bonding, and whenever compound exhibits hydrogen bonding, it is soluble in water. ये भी गलत. It reduces Fehling reagent. Since we have only two functional groups, alcohol and carboxylic acid, and these functional groups cannot react with Fehling reagent, which is why C is also incorrect. Obviously, right answer is going to be D because this compound contain alcohol and carboxylic acid functional groups. They can react together and forming an ester in the presence of a strong acid. Okay, and that's what we have done in the class as well. Question number 3. In its reaction with sodium, 1 mole of compound X gives 1 mole of hydrogen gas. 1 mole of hydrogen gas आपको उस वक्त मिलेगी जब compound X contain 2 OH groups or 2 CWH groups or 1 OH and 1 CWH group. So इन तीनों में से कोई एक सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा होगा बिकॉज जब आपके पास यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइंड होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे. दैट्स गोइंग टू बी 1 मोल. सही है. तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज इट कंटेन ओनली 1 OH. It is also incorrect because it contain only 1 OH. This also incorrect because it contain only 1 CWH. Now D is going to be the right answer because इसमें एक OH अल्कोहल का और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. यानी ये थर्ड कंडीशन फॉलो हो रही है. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. An organic compound J reacts with sodium to produce an organic ion with a charge of -3. Okay, J reacts with NaOH to produce an organic ion with a charge of -1. अगर NaOH के रिएक्शन करने से चार्ज -1 है तो इसका मतलब 1 COOH group is present in J. तो 1 COOH यहां नहीं है क्योंकि इसमें 2 COOH है. ये रॉन्ग हो गया. यहां पर COOH नहीं है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. यहां 1 COOH है, so that might be the right answer. यहां 1 COOH है, that might be the right answer. बट एक और प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर ने हमसे ये कहा है कि जब सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं तो -3 चार्ज आता है. -3 चार्ज का मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 COOH होना चाहिए और 2 OH होने चाहिए.
पहली तो पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी 1 COOH, बल्कि 2 COOH, और 2 COOH हो नहीं सकता बिकॉज -1 चार्ज है, तो COOH तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन देखनी है मैंने अब -3 चार्ज के लिए। ये ऑप्शन बी में एग्जिस्ट नहीं कर रही बिकॉज बी के अंदर सिर्फ एक OH है, उसूली तौर पे 2 OH होने चाहिए, यहाँ एक कार्बो एल्डिहाइड है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज आप नोट कर सकते हैं कि इसमें एक COOH है, तो दिस विल गिव यू -1 चार्ज विद NaOH। ऑन द अदर हैंड सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो ये भी रिएक्शन करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा, और ये भी रिएक्शन करेगा, तो 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस टू यू। नेक्स्ट, complete combustion of compound X produces carbon dioxide and water only. X produces steamy fumes with PCl5। तो अगर PCl5 का रिएक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ या तो फंक्शनल ग्रुप OH होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप COOH होगा, क्योंकि यही दो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो PCl5 से रिएक्शन करते हैं। X does not give any visible product with 2,4-DNPH। इसका मतलब इस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं हो रहा, तो कार्बोनाइल कंपाउंड एब्सेंट, यानी ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है। क्योंकि कार्बोनाइल एब्सेंट है तो ऑब्वियस PCl5 का रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन इज इनकरेक्ट बिकॉज हाइड्रोकार्बन PCl5 से रिएक्शन नहीं करता है। Okay, next is what can be deduced with certainty from this information। Certainty यानी confirmation। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये भी स्टीमी फ्यूम्स देगा PCl5 पे, ये भी स्टीमी फ्यूम्स देगा PCl5 पे, तो ऑब्वियसली फिर हमारे लिए इन दोनों को ऑप्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए भी पॉसिबल है, ऑप्शन सी भी पॉसिबल है, तो सर्टेनिटी तो नहीं बनी। तो आंसर इज डी, बिकॉज अगर कार्बोनाइल एब्सेंट है तो इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा, और ये बहुत सर्टन बात है। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या अल्कोहल होगा, PCl5 से रिएक्शन कर रहे हैं। अब हम डिसाइड कैसे करें, एग्जामिनर ने कोई और क्लू तो दिया नहीं है हमें, तो इसका मतलब ए और सी के अंदर अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, विच इज वाई ए और सी को मैंने रॉन्ग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many moles of hydrogen gas are evolved when an excess of sodium metal is added to 1 mole of citric acid। okay, सबसे पहली बात कि भाई सोडियम मेटल इससे रिएक्शन करेगा, सोडियम मेटल इससे रिएक्शन करेगा, इससे भी रिएक्शन करेगा, इससे भी रिएक्शन करेगा। सो आप जानते हैं कि यहां से भी एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा आपको, यहां से भी एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा आपको, ये भी हाइड्रोजन एटम मिलेगा आपको, और यहां से भी हाइड्रोजन एटम मिलेगा। गाइस, ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइंड होकर ये आपको दे देंगे हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली ये दोनों भी हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर क्या प्रोवाइड कर देंगे आपको, हाइड्रोजन गैस। सो वो कह रहे हैं कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होंगे, तो एक मॉलिक्यूल ये इन्वॉल्व हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ये इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब से 2 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होंगे, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। एटम 4 है, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा जज करना सिखा दूं कि 1 मॉलिक्यूल, मैंने क्लास में भी बताया आपको ये बात, 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 2 एटम्स। सो हमारे पास कितने एटम थे, 4 एटम्स थे हाइड्रोजन के। तो अगर 4 एटम्स हैं तो बताइए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सही, तो 4 डिवाइड बाय 2 होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 मोल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Q is a compound with the molecular formula C4H10O। Q can be oxidized with acidified potassium dichromate 6। Q cannot be made by reducing carboxylic acid with lithium aluminum hydride। What is the structure of Q? Okay, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज ये टर्शियरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑलराइट, अब वो कह रहे हैं, यहां पर नोट करें, वो कह रहे हैं कि Q कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग
a carboxylic acid with lithium aluminum hydride. कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करें तो मुझे एल्डिहाइड मिल सकता है या फिर अल्कोहल मिल सकता है, नॉट कीटोन, अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक which we have done in basics. सही है। सो एल्डिहाइड किससे मिलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल से। ऑलराइट, और कीटोन किससे मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल से। अब देखें जरा, इसकी ऑक्सीडेशन करें आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सही है। और अगर हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑब्वियसली मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, बिकॉज मोर देन वन स्टेप रिडक्शन होगी अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट। चीज वही मिल जाएगी जो एग्जामिनर ने मुझे दी हुई है। तो ये भी गलत, क्योंकि ये तो वापस रिड्यूस होकर मुझे मिल रहा है। वो कह रहा है कैन नॉट बी मेड। अच्छा, बी को भी देख लीजिए। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें तो ये प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाऊंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ऑब्वियसली बेटा सेम कंपाउंड मिलेगा मुझे दोबारा से, and that same compound contain the same functional group that is primary alcohol। तो ये भी गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी Na। अब ए क्यों है जरा ये देख लीजिए। ये है CH3 CH OH CH2 CH3, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करेंगे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, राइट। तो अगर मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैं उसको रिड्यूस करता हूँ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट से तो मोर देन वन स्टेप रिडक्शन होगी, और जब रिडक्शन होगी या तो वो एल्डिहाइड बना, ऑब्वियसली वो अल्कोहल बनाएगा, राइट। एल्डिहाइड तो नहीं बनाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, तो अल्कोहल बनाएगा। जब अल्कोहल बनाएगा तो जाहिर सी बात है कीटोन तो नहीं मिल सकता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करने पे कीटोन कभी भी नहीं मिलता, अल्कोहल्स मिलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, व्हिच इज व्हाई इज द राइट आंसर। Chlorogenic acid is found in green coffee beans and is used in treatment for weight loss. What is produced in good yield when chlorogenic acid is treated with an excess of sodium carbonate solution at room temperature? ये याद रखिएगा कि जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है ये रिएक्ट करता है विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ओनली। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव में। तो COO और बाकी ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये सब एज इट इज रहेगा। तो देखें ये एज इट इज है, ये आर भी एज इट इज है, सिर्फ COO नेगेटिव Na पॉजिटिव यहां पर आएगा, एंड आई बिलीव ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये सारे के सारे क्या है? अल्कोहल्स, एंड अल्कोहल्स आर न्यूट्रल। अल्कोहल का कभी भी कोई रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से नहीं होता, मैंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं करवाया, which is why B is incorrect, C is incorrect, and obviously सोडियम कार्बोनेट की कभी भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस नहीं होती सोडियम कार्बोनेट से। सो क्योंकि ये एस्टर है पूरा का पूरा, इसकी हाइड्रोलिसिस मुमकिन नहीं है। या एस्टर की हाइड्रोलिसिस या तो एसिडिक मीडियम में होती है, एल्कलाइन। सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में तो कभी भी नहीं होती, मैंने नहीं करवाई, व्हिच इज व्हाई डी इज आल्सो इनकरेक्ट। Question number 9. Compound S can be extracted from natural compounds. Reacting S with hot concentrated KMnO4 produces organic compound T.
ये जो आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट इंडिकेट कि S कंटेन एल्कीन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 सिर्फ एल्कीन से रिएक्शन करता है. ऑलराइट, नेक्स्ट, some of the absorptions found in the infrared spectra of S and T are discrete. S has no strong absorption peak between this and this. तो अगर कोई एब्जॉर्प्शन पीक नहीं है तो इसका मतलब नो कार्बोनाइल इन एस, यानी ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है, इसलिए ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट क्योंकि उसमें कार्बोनाइल दिया हुआ है. राइट, नेक्स्ट, T has a strong absorption as this. तो अगर T की स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन आ रही है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो इसका मतलब T कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज CO ग्रुप, but no strong broad absorption between 2500 and 3000 centimeter inverse. That indicates कि no COOH group, क्योंकि ब्रॉड एब्जॉर्प्शन पीक उसी वक्त होती है जब कार्बोक्सिलिक एसिड. सो आप लिख दीजिए नो COOH ग्रुप. सो टी में COOH ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ टी में COOH ग्रुप है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत. यहाँ भी टी में COOH ग्रुप है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत. तो जब ए गलत, सी गलत, बी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि इसमें सारे के सारे एल्कीन्स हैं, क्योंकि वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कीटोन बन रहा है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है. और नोट करें, इसको जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो एग्जैक्ट यही बनेगा. देखो CH3 CO CH2 CH2 CO CH CH3 CH3. सही है. ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. मैं दोबारा से एक मरतबा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो मांग क्या रहे हैं आपसे स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्डेड CH, ये भी हो जाएगा डबल बॉन्डेड CH, और ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे COOH में. बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा. सो भाई आपके पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ से. पहली प्रोडक्ट देखिए आप, सबसे पहला है CH3, फिर आपके पास डबल बॉन्डेड C, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में. फिर आपके पास है CH2, फिर है आपके पास CH2, फिर है डबल बॉन्डेड C, तो इट विल टर्न टू CO. फिर है आपके पास CH, CH के साथ दो CH3 है, एक यहाँ अटैच कीजिए, एक यहाँ अटैच कीजिए, और ये एग्जैक्टली T है जिसका ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. और यहाँ से जो दूसरी प्रोडक्ट है वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH एंड COOH, जिसको एग्जामिनर ने यहाँ कोट ही नहीं किया हुआ. ठीक है, ऑलराइट. यानी हम ये कह रहे हैं, ये CH3 ये रहा, ये डबल बॉन्डेड C कीटोन, CH2 डबल बॉन्डेड C कीटोन. ठीक है, ये CH ये रहा, इस CH के साथ ये दो CH3 हैं, ये रहे, और ये CH इस COOH में, ये CH इस COOH में, इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. One molecule of compound R is shown. What is the name of the compound R and how does its boiling point compare with that of butanoic acid? Okay, सबसे पहली बात, इसको कहते हैं मैथनोएटाइंस और इसको कहते हैं प्रोपाइल. तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, इसको हम कह देंगे प्रोपाइल और इसको हम कह देंगे मैथनोएट. सो ये मैथनोएट हो गया और ये प्रोपाइल हो गया. तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपाइल मैथनोएट. तो प्रोपाइल मैथनोएट यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, एंड ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, stronger than permanent dipole dipole forces.
तो ऑब्वियसली ब्यूटानिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ब्यूटानिक एसिड का, तो लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट होगा, आई मीन लोअर देन ब्यूटानिक एसिड होगा, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ओके, नेक्स्ट, when this compound is warmed with a little concentrated sulfuric acid, a cyclic compound is formed. ये जो आपके पास concentrated sulfuric acid है, ये basically as a catalyst behave करेगा, और जो cyclic compound आपके पास है, ये basically ester का होगा। ester इसलिए क्योंकि इसमें COH ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो ये आपस में कल रिएक्शन कर लेंगे। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, ऑलराइट, फिर ये है आपके पास CO and this is OH, then CH2 and then OH। ओके, now अब क्या होगा, यहां से OH यहां से H दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर, और जो रह जाएगा वो लिखते हैं हम, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये क्या हो जाएगा आपका CO, ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन एटम। अब ये कहाँ लिखा हुआ है आपके पास, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, दिस वन, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये दिस वन, ये आ गया ये, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली सी में है, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, esters can be prepared by the reaction of a carboxylic acid with an alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid. Which route gives the correct name of the reagents that would suitable to prepare esters? सबसे पहली बात, ये आपका अल्कोहल का पार्ट है, एंड ऑब्वियसली अगर मैं इस अल्कोहल के पार्ट को लिखूंगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, CH3 CH OH एंड CH3, और इस अल्कोहल के पार्ट को हमने नाम दिया हुआ है प्रोपेन टूओल का, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये जो है आपका, ये एसिड का पार्ट है, तो कितने कार्बन एटम का एसिड हो गया, 1 2 3 4 कार्बन एटम का, सो 4 कार्बन एटम का अगर एसिड है तो ये ब्यूटानोइक एसिड होगा। तो अल्कोहल जो है वो प्रोपेन टूओल है, वो ये रहा और ये रहा, और एसिड जो है वो ब्यूटानोइक एसिड है, तो ये भी ब्यूटानोइक एसिड है, ये भी ब्यूटानोइक एसिड है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। Question 13, compound Q can be hydrolyzed by HCl. The two products of this hydrolysis have the same empirical formula. What could Q be? अच्छा जी, मैं इसकी हाइड्रोलिसिस अगर करूं, अच्छा चले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं, यहाँ CH3 CO O CH2 CH2 OH। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से, ये अल्कोहल का पार्ट हो गया है, तो अल्कोहल ये बन रहा है आपके पास CH2 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 OH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O2, ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3O, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर इज एम्पेरिकल। ओके, जबकि ऑन द अदर हैंड ये आपका एसिड का पार्ट है, तो इसका एसिड ये बनेगा CH3 COOH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो ये बनेगा CH2O, दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ओके, अब हम इसकी इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, ये हमारे पास CH3 CO O CH2 CH2 एंड देन COOH, ठीक है, बल्कि उसको ओपन इसको ऐसे रखते हैं। ऑलराइट, ये आपका एसिड का पार्ट है,
ये एसिड बन गया आपका CH3COOH, इसका फॉर्मूला है C2H4O2 और इसका एम्पेरिकल बनेगा CH2O, यानी हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर इज एम्पेरिकल। ऑन द अदर हैंड ये आपका अल्कोहल का पार्ट है, इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा OH CH2 CH2 एंड देन COOH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करें 3, टोटल हाइड्रोजन काउंट करें 1 3 एंड 3 6 एंड टोटल ऑक्सीजन काउंट करें 3। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा CH2O। तो इन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम हो गया, और वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। तो आई बिलीव बी इज द राइट आंसर। जाहिर सी बात है, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला का कोई और ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए मैं आगे जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर यही आ गया। 14 of, oh sorry, with aqueous sodium hydroxide solution, two products are formed, sodium ethanoate and hexane 1O. What compound X? अच्छा जी, सोडियम एथेनोएट, एथेनोएट का मतलब 2 कार्बन एटम्स का एसिड होना चाहिए, और 2 कार्बन का एसिड ये नहीं है, क्योंकि ये 1 2 3, एक मिनट मैं बता देता हूं आपको, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये एसिड का पार्ट है, और इसमें एसिड कितने कार्बन एटम का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम का एसिड है, जबकि वो सोडियम एथेनोएट कर रहा है, यानी 2 कार्बन एटम का एसिड चाहिए, व्हिच इज व्हाई ए इज इनकरेक्ट। अच्छा अभी तो देखो, ये भी इनकरेक्ट, ठीक है, ये सी भी इनकरेक्ट। उसकी वजह ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का एसिड है ये, जबकि हमें तो 2 कार्बन एटम का एसिड चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत। अब कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड डी। अब बी को सबसे पहले चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये पूरा का पूरा आपका 7 कार्बन एटम का अल्कोहल है, C7H H15OH, जबकि वो कह रहे हैं हेक्सेन 1 यानी 6 कार्बन एटम का होना चाहिए। सही है। तो इसका मतलब ये भी गलत, क्योंकि हेक्सेन 1 का फॉर्मूला तो डिफरेंट होता है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। अब डी क्यों ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली कितने कार्बन एटम का हो गया? 6 कार्बन एटम का हो गया, है ना। ये देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं तो ये बन जाएगा C6H13OH, दैट इज हेक्सेन 1 हो गया ये, और ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? एसिड का पार्ट, और 2 कार्बन एटम का एसिड है ये, तो ये इथेनोइक एसिड होगा, लेकिन क्योंकि मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसलिए सोडियम इथेनोइक। सही है। हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ 8 कार्बन एटम का एसिड, 8 कार्बन एटम एसिड है यहाँ, इसलिए इसको गलत किया। इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन एटम का एसिड है, इसलिए ये गलत किया। ठीक। Question number 15. Compound X is shown. X is treated separately with NaOH and lithium aluminum hydride to give Y and Z. What are Y and Z? अच्छा भाई, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप जानते हैं एल्कीन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन नहीं करेगा, एज इट इज, और सेकेंडरी अल्कोहल भी रिमेन एज इट इज। ये जो COOH है, ये अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक रूट
टू स्टेप रिडक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल व्हिच इज CH2OH। तो ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, तो या तो ए आंसर है या सी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा तो आप जानते हैं NaOH सिर्फ और सिर्फ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल एज इट इज, एल्कीन एज इट इज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा COONA में। तो COONA कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, which is why A is going to be the right answer. Okay. 16. Which substance when warm with aqueous ammonium chloride would produce an alkaline gas? यार ये हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। ये आपका क्या है, ओहो, ये आपका क्या है, अमोनियम सॉल्ट। अगर ये आपका अमोनियम सॉल्ट है और आपको एल्कलाइन गैस इज बेसिकली द अमोनिया गैस चाहिए, तो यू नीड एन एल्कली। ये एसिड रॉन्ग, एस्टर न्यूट्रल रॉन्ग, अल्कोहल न्यूट्रल रॉन्ग, राइट आंसर इज डी, क्योंकि ये बेस है, सोडियम इथॉक्साइड इज अ बेस। ऑलराइट, हम इसका रिएक्शन भी करके दिखा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है इसमें। हम इसको इस तरह से भी रिएक्शन करके दिखा सकते हैं कि ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, सही है, और ये आपका CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव है। अब भाई क्या होगा कि यहाँ से क्लोराइड और यहाँ से सोडियम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। ये आपका सॉल्ट हो गया, प्लस एल्कलाइन गैस अमोनिया बना रहे हैं तो ये NH3 आ गई। अब जाहिर सी बात है यहाँ से H रह गया और यहाँ से एथॉक्साइड, ये आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है जी, ये बेसिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। Okay, now the next is the compound cetyl palmitate is a waxy solid. Cetyl palmitate is heated under reflux with excess of aqueous NaOH. What products will be formed? तो भाई पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, C15H31 COO, फिर है C16H33। तो हम सब जानते हैं कि ये एसिड का पार्ट है, तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव बिकॉज मीडियम इज अल्कलाइन। और हम सब ये भी जानते हैं कि ये अल्कोहल का पार्ट है, और अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल होते हैं, विच इज वाई वो NaOH से रिएक्शन कभी भी नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा C16H33 एंड देन OH। अब देखेंगे ये दोनों चीजें कहाँ लिखी हैं, C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है। और C16H33 OH कहाँ लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखा है, which is why D is going to be the right answer. Then hexadeca-10,12-diene 1-ol is produced by silk moss from hexadecanoic acid in a 3-step enzymic process. Okay, which row contain correct description of the 3 steps? आप नोट करें, यहाँ पर यहाँ से यहाँ रहे तो डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो भाई यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर आप इस सेकंड स्टेप में देखें, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड बन गया है, इसका मतलब यहाँ पर भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। सो लॉस ऑफ अगर हाइड्रोजन हुआ है तो ये भी आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक। अच्छा, अब आप नोट करें, ये आपका COOH है और ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी अल्कोहल में। तो भाई अगर प्राइमरी अल्कोहल में तो एडिशन ऑफ H2 हुआ, इसका मतलब रिडक्शन हुई। तो स्टेप 1 ऑक्सीडेशन, स्टेप 2 ऑक्सीडेशन और स्टेप 3 रिडक्शन। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। 19. Compound X can be converted into compound Y in a single step. What could be the identity of X? Okay.
इससे पहले कि डिस्कस करें, याद रखिएगा कि ये CH है तो ये COH में कन्वर्ट होगा, और ये डबल बॉन्डेड C है तो ये कीटोन, ये डबल बॉन्डेड C, डबल बॉन्डेड C, डबल बॉन्डेड C, और ये भी CH, ठीक है, ये भी CH, और ये भी CH। चल अब बना के देखते हैं स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले ऑप्शन ए से बनाते हैं। ये आपका CH3 है, फिर डबल बॉन्डेड C आ गया तो वो कीटोन, उसके बाद CH2 है, CH2 के बाद ये CH है, इस CH के साथ ये एक CH3 है तो हमने इसको यहाँ ब्रांच में लगा दिया, और ये सिंगल बॉन्डेड CH है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। सो आई बिलीव आप नोट करें, ये CH3 ये रहा, ये कीटोन ये है, ये CH2 है, ये रहा CH2, ये CH है, ये रहा CH, इसके साथ ये CH3 ये लगा बस CH3, ये COH है, ये रहा COH। इसका मतलब ऑप्शन ए से मुझे ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, which is why A is going to be the right answer. Okay. Question number 20. Part of the structure of strobilurin is shown. R and R dash are inert groups, and obviously R और R dash मैंने क्लास में बताया था कि जब different alkyl groups होते हैं तो हम उनको R और R dash से represent करते हैं. This compound is formed with aqueous sulfuric acid producing compound C. Compound X is then treated with hydrogen in the presence of a nickel catalyst producing compound Y. What is the structure of compound Y? अच्छा जी, पहली तो बात ये हो गई कि हम इसका स्ट्रक्चर एक मरतबा लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। और मैं इस स्ट्रक्चर में चेंजेस कर दूंगा। अब कैसे करूंगा चेंजेस, देखिएगा जरा। हम सब जानते हैं कि ये एस्टर है, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सही। तो जब एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो हम सब जानते हैं ये यहां से चला जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा OH, और जो ग्रुप रिमूव हुआ है, उप्स, और जो ग्रुप रिमूव हुआ है प्लस, वो आपके पास बन जाएगा CH3OH में, ठीक है जी। यानी इतने ग्रुप से ये बन गया और बाकी ये आ गया। अब जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं इस कंपाउंड को हमने हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट करवाया रिएक्शन, तो जब रिएक्शन से करवाएंगे हाइड्रोजन गैस से करवाएंगे तो सारे के सारे जो एल्कीन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, वो ये सैचुरेट हो गए, सही है। तो इससे पहले जो था वो X बना था, ये हमारा Y हो गया। आप चेक करें कि ये कहां पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है जनाब A में, आई बिलीव A में इज द राइट आंसर, सही है। ये गलत, क्योंकि अल्कोहल जो है वो इंटैक्ट नहीं होता, अल्कोहल तो हमारे पास एक अलग प्रोडक्ट के तौर पे आएगा, और ये स्ट्रक्चर ही गलत है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो वो डबल बॉन्ड जो है वो मिसिंग है, विच इज वाई ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। और डी भी गलत है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो अल्कोहल है ये तो हमारा अलहदा से है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। और ओ ये भी तो देखें कि ये अल्कोहल आ रहे हैं, डायोल आ रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से डायोल्स मुमकिन नहीं है, इसलिए ये भी गलत। क्वेश्चन 21, organic compound Z has an alcohol group and a carboxylic acid group. Compound Z reacts with magnesium carbonate to make a salt with a relative formula mass of 230.3. Compound Z does not react with acidified potassium magnate 7.
Okay, kind of challenging. Kind of challenging. Okay. तो एक चीज तो यहां से कंफर्म हो गई कि भाई ये जो z है ना, इस पे टर्शियल कोल होगा, बिकॉज टर्शियल कोल कैन नॉट ऑक्सीडाइज। ये तो पहला क्लू आ गया। ठीक। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 1 2 3 4, ये ब्यूटानोइक एसिड हो गया। 2 हाइड्रोक्सी कह रहे हैं, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी। 2 मिथाइल कह रहे हैं, ये हो गया 2 मिथाइल। सही है। सही है भाई। ठीक है। अब मसला ये कि अगर मैं इसको मेंशन करवाता हूँ तो ये बना सी सी सॉरी मैग्नी, हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराता हूँ, ये बनेगा CH3 CH2 COH, ये CH3 एज इट इज, ये COO टेकन 2 और ये Mg। अब इसका MR जो है ना वो ग्रेटर देन 230 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग। सही है भाई। ऑप्शन बी के लिए देखते हैं। 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड कह रहा है, ये बनाया प्रोपेनोइक। 2 मिथाइल कह रहा है, ये आ गया 2 मिथाइल। 2 हाइड्रोक्सी कह रहा है, ये आ गया 2 हाइड्रोक्सी। सही है। अगर मैं इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बनेगा CH3 टेकन 2 COH COO टेकन 2 Mg। सही है भाई। अब इसका MR निकाल लेते हैं। इसका MR एग्जैक्टली बेटा मेरे पास आएगा 230.3, जो कि एग्जामिनर ने दिया हुआ है मुझे, विच इज वाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर भी लिख के दिखा सकते हैं एग्जामिनर को, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से बनेगा बेटा स्ट्रक्चर। इसी का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिएगा। ये है CH3 CH3OH, और ये हो जाएगा COO-। ठीक है। फिर है आपके पास O-, CO, CH3OH एंड देन CH3। ठीक है। ये मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2+, तो यहाँ बीच में 2+ लगा दीजिए। सही है भाई। इसका पूरे का MR कितना होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। इस पूरे का MR है हमारे पास 103। इस पूरे का भी MR हमारे पास कितना होगा? 103। ठीक। मैग्नीशियम का MR हमारे पास कितना है? 24.3। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 230.3। समझ आ रही है बात? ये इस तरह से लिखा हुआ है स्ट्रक्चर।
तो क्योंकि 230.3 एक ही जगह पे आ सकता है एमसीक्यूज में और वो ऑप्शन बी में आ रहा है, विच इज व्हाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, which compound produces butane 2-ol and ethanoic acid on hydrolysis? हम्म चलें पहले ऑप्शन ए को देखते हैं. CH3, CO, O, CH3 and this. बॉन्ड यहां से ब्रेक कीजिए तो आपके पास इथेनोइक एसिड होगा और ये हो जाएगा CH3, CH, CH3OH. तो यहां तो ब्यूटेन 2-ol नहीं मिला, यहाँ तो 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ol मिला है हमें. सही है, तो ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन ए इनकरेक्ट. ऑप्शन बी पे चलते हैं. CH3, CO, O, and then CH2, and then CH3. I think B is the right answer. बॉन्ड को यहां से ब्रेक करें तो सबसे पहले एथेनोइक एसिड बनेगा. ठीक है, ये एथेनोइक एसिड बन गया. उसके बाद ये CH3, ये CH2, ये CH, ये OH और ये CH3. तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं CH3, CH, OH, CH2, CH3. आप नोट करें ये ब्यूटेन 2-ol हो गया आपके पास. तो B is going to be the right answer. Okay. Next question is, two 1-gram sample of Y are two 1-gram sample of Y are reacted separately and completely with sodium carbonate. The volume of gases produced are collected and measured. सोडियम के साथ 2, सोडियम कार्बोनेट के साथ 1. What could be Y? देखो भाई, दो चीजें हैं. सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब इट कैन बी अल्कोहल और इट कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यही वो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं. सोडियम कार्बोनेट कंफर्म कर रहा है कि COOH ग्रुप प्रेजेंट है, और कितना है? 1 COOH ग्रुप प्रेजेंट है. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट क्योंकि नो COOH. सही है. ऑप्शन सी भी गलत क्योंकि नो COOH ग्रुप. सही है. ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज नो OH ग्रुप. सही है. बल्कि नो OH ग्रुप की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि, सॉरी, ये एक मिनट, आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस कंपाउंड कैन रिएक्ट with 1 mole of sodium because only 1 COOH is there. जबकि उसने कहा कि 2 moles of sodium रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, बिकॉज जो 2 moles ऑफ सोडियम है वो एक OH से और एक COOH से रिएक्शन करेगा. ये 2 moles ऑफ सोडियम हो गए, और 1 mole ऑफ सोडियम कार्बोनेट से COOH की वजह से होगा. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. Question 24. Which reaction has a product that gives a yellow precipitate when treated with alkaline aqueous? 2-chloropropane is warm with a dilute aqueous solution of sodium hydroxide. तो 2-chloropropane है आपके पास और मैं उसको NaOH से रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये बनेगा प्रोपेन 2-ol. ये मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाई है इस रिएक्शन की. ठीक है,
मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। इथेनॉल को अगर मैं एसिडिफाई करूंगा तो इथेनॉइक एसिड बनेगा। मिथाइल इथेनोएट को अगर मैं, तो इथेनॉइक एसिड बनेगा और मिथेनॉल बनेगा। प्रोपेनॉल अगर है तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, रिड्यूस होकर CH3 CH2 CH2OH। अब नोट करें, इसके अंदर आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर सिर्फ इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। ये एसिड है, एसिड में तो कार्बो आइडोफॉर्म का टेस्ट ही नहीं होता। तो अल्कोहल में उस वक्त टेस्ट पॉजिटिव आता है जब उसके पास CH3 CHOH ग्रुप हो। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट आएगा आइडोफॉर्म का, विच इज व्हाई A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Next, question number 25. The skeletal formula of M is shown. Okay, M is reacted with an excess of lithium aluminum hydride. Dilute acid is then added. What is the molecular formula of the final organic product? Okay. तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि हम इसको सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद ये CH2 CHOH CH2 एज इट इज, CH2 CHOH CH2 एज इट इज। और फिर उसके बाद ये क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल में। सही है। अब आप यहां से कार्बन एटम काउंट करें, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। हाइड्रोजन काउंट करो, 2 and 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो C5H12O3 कहाँ लिखा हुआ है, डी में लिखा है। सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। इथाइल इथेनोएट, ethyl butanoate is a flavoring with a fruity flavor. Which row is correct? Alcohol and acid that reacts to form ethyl butanoate. अच्छा, मैं इथाइल ब्यूटानोइट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मैं पहले एसिड का पार्ट लिखता हूँ, ब्यूटानोइट CH3 CH2 CH2 CO, ये एसिड का पार्ट हो गया ब्यूटानोइट। और अल्कोहल है इथाइल, ये अल्कोहल हो गया विच इज इथेनॉल। सही है, तो ये इथेनॉल होना चाहिए आपके पास, और यहां से ब्यूटानोइक एसिड होना चाहिए। सो ब्यूटानोइक एसिड 1 2 3 4, ये ब्यूटानोइक एसिड हो गया और ये इथेनॉल हो गया। ओके, और यहां से 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। जस्ट होल्ड इन अ सेकंड प्लीज। एस्टर का MR सबसे पहले देखते हैं। 29 प्लस 29 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 32। इस कंपाउंड का MR है 116। सही है, वेट कीजिएगा, मैं रीचेक कर लेता हूँ। 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 प्लस 32 प्लस 3 3 6 4 10। यस, ठीक है। और हमारे पास मास ऑफ एस्टर कितना गिवन है हमें, 2.32। तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स भी निकालने की लिए जरूरत नहीं है, हम एक काम करते हैं, इसका MR लिखते हैं 116, वाटर का MR 18। अगर ये 2.32 ग्राम है एस्टर, तो बताइए मास ऑफ वाटर कितना होगा। तो 2.32 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 116
तो यहां से मुझे मास ऑफ वाटर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.32 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 116, यू विल गेट 0.36 ग्राम। तो 0.36 ग्राम यहाँ है, 0.36 ग्राम यहाँ है। ये आपका ब्यूटानोइक एसिड है और ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल यहाँ पर भी है, ब्यूटानोइक एसिड ये भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि 0.36 ग्राम तो सिर्फ आपके पास ए में आ रहा है और सी में आ रहा है, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे। उसके बाद नेक्स्ट, एन एस्टर इज शोन, विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म दिस एस्टर। बहुत आसान है, आपने यहाँ से एस्टर का पार्ट ब्रेक कर देना है। ये पूरा का पूरा एसिड है और इस एसिड 3 कार्बन एटम का एसिड इज प्रोपेनिक एसिड। सही है, तो प्रोपेनिक एसिड ये रहा, प्रोपेनिक एसिड ये रहा, इसका मतलब सी भी गलत, डी भी गलत। कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, और ये आपका अल्कोहल का पार्ट है। सो दैट्स योर अल्कोहल, और इस अल्कोहल का नाम हमने दिया था 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये अल्कोहल है जिसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं जनरली। सो इट्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Three colorless liquids with the following formulae are contained in separate unlabeled bottles. ठीक है, which two tests carried out on separate samples of each liquid will successfully identify each liquid? तो इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम, और इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम वेट करें एक मिनट। ओके, लेट मी चेक। हमारे पास है CH3, CH2, COOH, सही है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है CH3, CHOH, COOH, और फिर हमारे पास CH3, CO, COOH। ओके, वो एक मिनट, होल्ड ऑन अ सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेकेंड। जगह नहीं है, यहाँ कर लो जगह, ठीक है। एक लाइन और ड्रॉ कर लो। अच्छा, अब इस लाइन के अंदर हम कौन कौन से रखेंगे भाई? हम रखते हैं जो हमें ऑप्शंस में दिए हुए एग्जामिनर ने, हमें दिए हुए ऑप्शंस के अंदर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट दिया हुआ है, टॉलेंस दिया हुआ है, 2,4-DNPH दिया हुआ है, और डाइक्रोमेट 6 साइंस दिए हुए हैं, Cr2O7 2-। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन 2,4-DNPH कभी नहीं होगा और एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब इसमें एसिड भी है और इसमें अल्कोहल भी है, तो एसिड का रिएक्शन भी होगा और सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन टॉलेंस और 2,4-DNPH नहीं आएगा। इसमें कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का तो टेस्ट हो जाएगा, टॉलेंस का टेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव होता है, कीटोन के साथ नहीं होता। 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नेवर ऑक्सीडाइज। सही है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट 2 जो है उसमें आपके पास हम्म हम्म हम्म, हम्म,
Which two tests carried out on separate sample of each liquid will successfully identify them? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि तीनों में पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। नाउ कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी, तीनों को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं मैं, है ना। तो 2,4-DNPH ले लेते हैं क्योंकि वो दो में जो है वो नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डाइक्रोमेट 6 साइंस ले लेते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। तो डाइक्रोमेट यहां भी है, डाइक्रोमेट यहां भी है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, नेक्स्ट, an alcohol X reacts with dicarboxylic acid Y to form a double ester Z. This diagram shows the structure of the ester. Which row about the reactants forming ester Z is correct? पहली तो बात ये कि बॉन्ड यहां से ब्रेक कीजिए, बॉन्ड यहां से ब्रेक कीजिए, इसका मतलब ये जो आपका अल्कोहल है ये सेम है, and this alcohol is basically propane 2-ol। सही है, ये लिखा हुआ है जिसको एग्जामिनर ने इस तरह से लिखा हुआ है, ऑलराइट। और ये जो सेगमेंट है गाइस, ये आपका एसिड का सेगमेंट है, तो ये जो एसिड आपके पास है इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। ये जो अल्कोहल आपके पास आया है ये बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, तो सेकेंडरी यहाँ है, सेकेंडरी यहाँ है, ये भी गलत, ये भी गलत। अच्छा, द शेप ऑफ द रिंग इन वाई, जाहिर सी बात है ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम की शेप हमेशा टेट्राहीड्रल होती है, यानी प्लेनर तो नहीं होती, ठीक है। तो जब प्लेनर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हम नॉन प्लेनर कहेंगे, हम नॉन प्लेनर कहेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टेरिक एसिड इज शोन, विच स्टेटमेंट अबाउट टार्टेरिक एसिड आर करेक्ट। पहली तो बात ये कि टार्टेरिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दूसरी बात सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं। वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ टार्टेरिक एसिड हैज मोर देन वन कायरल सेंटर, बिल्कुल सही बात है, एक कायरल सेंटर ये है आपका, दूसरा कायरल सेंटर ये है आपका, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। फिर वो कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टार्टेरिक एसिड इज दिस, चलो काउंट करते हैं कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन एटम। हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2, इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6। ऑक्सीजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, उन्होंने कहा है C4H4O6, H C4 ठीक है, O6 ठीक है, H6 है मेरे पास, यहाँ H4 का है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत, ठीक। थर्ड भी देख लें, वन मॉलिक्यूल ऑफ टार्टेरिक एसिड प्रोड्यूसेस 4 हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, नहीं जी। अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं, राइट, वो आयोनाइज नहीं होते हैं, तो आपको सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, ओनली 2 हाइड्रोजन आयंस, ऑलराइट। तो आप कह सकते हो कि ओनली 4 हाइड्रोजन आयंस। तो ये भी गलत, तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली डी बिकॉज ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। एच आइंस यहां से मिलेगा आपको और एच आइंस जो है वो यहां से मिलेंगे आपको, ये एच आइंस नहीं देंगे, ये भी एच आइंस नहीं देंगे क्योंकि अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं, वो आयोनाइज नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन 31,
Which compound can we use to make Y in a single step reaction? Propane nitrile. Propane नाइट्राइल तो आप जानते ही हैं, सारे बच्चे पढ़कर आए हैं। प्रोपेन नाइट्राइल तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल को हम साइनोइथेन भी तो कहते हैं। जैसे CH3 CH2 CN, तो अगर मैं इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड देन COOH। ऑलराइट, तो ये आपका क्या है, CH3 ये रहा, ये आपका CH2 ये रहा, और ये COOH ये रहा। तो पहला तो ठीक है, ये तो बन रहा है। फिर है इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल को हम कहते हैं CH3CN। अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये CH3 एज इट इज रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। दैट्स योर इथेनोइक एसिड, जबकि ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड है। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया हमारा। फिर है प्रोपाइल इथानोएट। तो प्रोपाइल इथानोएट जो है वो आपका ये है CH3COO CH2CH2CH3। ओके, तो यहां से आपको मिलेगा इथानोइक एसिड, ऑलराइट, और यहां से मिलेगा आपको प्रोपेनॉल, दैट इज CH3CH2CH2OH। तो प्रोपेनोइक एसिड तो नहीं मिल रहा, प्रोपेनॉल मिल रहा है, तो ये भी गलत। लास्ट देखें, इथाइल प्रोपेनोएट, CH3CH2COOCH2CH3, ये हो गया इथाइल प्रोपेनोएट। तो यहां से मुझे प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा और इथेनॉल मिलेगा। सही है, तो यहां से मुझे प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है, तो 1 and 4 is correct, which is why B is going to be the right answer. Question 32. Question 32. Citric acid can be converted into tricarbolic acid in 2 stages and intermediate Q is formed. Which reagent are needed for each stage? Okay. ये जो step 1 है, ये basically आपका dehydration हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। और ये जो आपका स्टेज 2 है, ये हाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सही। डिहाइड्रेशन हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, आप जानते हैं। ओके, और हाइड्रोजनेशन जो है वो एल्कीन के अंदर हमेशा हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में होता है, तो वो ये है। तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए। बट क्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी देखना है हमने। तो क्यू का स्ट्रक्चर देखिए, क्यू का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होगा CH COOH, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन, ये COOH, ये क्या हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा COOH। ठीक है। जब यहां से H और यहां से OH मिलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, वाटर बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये CH हो जाएगा और ये C। तो जब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो इट्स गोइंग टू बी CH2 एंड इट्स गोइंग टू बी CH। ठीक है, इस तरह से सोचा है मैंने। आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये तीनों सेम है। सही है, ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस सिर्फ इस स्पेसिफिक पैटर्न में आ रही है बस। ठीक है, ये वाटर एलिमिनेट कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, बस इस तरह से समझ लीजिए बात को। 33. Compound X contain a single ester group. X contain 27.6% by mass of oxygen. Which pair of products could be produced by the hydrolysis of X? Okay. Kind of interesting. Interesting क्यों है? Interesting क्यों है? Okay.
यार बेटा ब्यूटेन वनोल एंड इथेनोइक एसिड दोनों को कंबाइन करूंगा तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये एसिड का पार्ट हो गया CH3CO, और ब्यूटेन वनोल कह रहा है तो ऑब्वियसली ये अल्कोहल का पार्ट हो गया, CH2 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 एंड देन CH3। ठीक है, ये अल्कोहल का पार्ट हो गया आपका। ऑल राइट, एंड गाइस इसका MR है आपके पास 116, राइट। और इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32, क्योंकि दो हैं। सो अगर मुझे परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना हो तो मैं 32 को डिवाइड करूंगा 116 से, इंटू 100 कर दूंगा। सही है जी। तो यहां से मेरे पास कितनी परसेंटेज आएगी? होल्ड ऑन अ सेकेंड। ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 116 इंटू 100 इज गोइंग टू बी 27.586। तो इसका मतलब ये 27.6% हो गया, और एग्जामिनर भी मुझे 27.6% कह रहा है ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सही है। एक और बात याद रखिएगा थोड़ा सा याद दहानी के लिए, कि भाई ये एसिड का पार्ट है, सॉरी ये अल्कोहल का पार्ट है रेड पेन से, और ये एसिड का पार्ट है ब्लैक पेन से, ताकि आपको स्ट्रक्चर में समझ में आए कि एसिड और अल्कोहल मैंने कौन सा लिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में ही आ गया, तो ऑब्वियसली दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते आउट ऑफ फोर। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें आगे वर्किंग करनी चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं, an aqueous solution containing 4 gram of carboxylic acid Q, when this solution reacts with an excess of magnesium, 380 cm cube of gas is produced at STP। STP, STP का वॉल्यूम होता है, जैसे रूम टेम्परेचर 24 डीएम क्यूब होता है, ऐसे ही होता है 22.4 डीएम क्यूब। और क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे 3 सेंटीमीटर क्यूब दिया तो इसका सीएम क्यूब में आंसर ये होगा। ठीक है, अब मुझे मास दिया हुआ है एग्जामिनर ने। ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम सबसे पहले जो हैं वो डिटरमिन करते हैं अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं मालूम। तो क्योंकि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं मालूम, इसलिए मैं RCOH ले लेता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं इसको सबसे पहले रिएक्शन करवाता हूँ मैग्नीशियम से। जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे हम इसको, तो गाइज ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास RCOO टेकन टू Mg प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप मैं मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट करूंगा। मेरे पास गैस है 380, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 222400 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 0.0169 मोल्स। ठीक है, जो मोल्स गैस के हैं वही मोल्स एसिड के हो जाएंगे, बिकॉज 1:1 का रेशियो है। तो हम ये भी दिखा देते हैं कि एसिड और हाइड्रोजन गैस हैज 1:1 रेशो। तो अगर आपने 0.0169 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ एसिड आपके पास क्या होगा? 0.0169 मोल्स। ठीक है, देन मुझे MR निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए क्योंकि मुझे मास गिवन है, मुझे मोल्स गिवन है, मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूंगा तो ये हो जाएगा 4.00 डिवाइडेड बाय 0.0169। तो मेरे पास MR ऑफ RCOOH आ गया ओह ओह, माय बैड, इट हैज टू बी 2 मोल्स।
क्योंकि यहाँ 2 लगाया हुआ है ना हमने, तो इसका मतलब यहाँ 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा। माय बैड, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस, अगर मुझसे गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, ठीक है। तो हम 0.0169 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, सो ये हो जाएगा 0.0338। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 0.0338 से, तो 4 divided by answer is going to be 118.343। ये इसका MR हो गया 118.343। ये सिर्फ B में आ रहा है, तो B is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. That's the end of this worksheet. Thank you very much.